حویلی کا ضدی ہان اور معصوم پری۔ قسط نمبر 1 حصہ اول۔ سوات کی خوبصورت اور سرسبز وادی پر ابھی رات کا اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سفید گہری دھند کی چادر لپٹی ہوئی تھی اور سرد ہوا کے جھونکے وادی کے بلند و بالا درختوں سے تپ چھپاتے ہوئے ٹکرا کر ایک سائیں سائیں کی پوری اسرار آواز پیدا کر رہے تھے۔ اسی وادی کے عین وسط میں ایک اونچی اور مضبوط پہاڑی پر کھڑی تھی سنگ مرمر کی وہ عالی شان اور طرحی حویلی۔ یہ حویلی صرف پتھروں اور اینٹوں کا ڈھیر نہیں تھی، بلکہ یہ پورے علاقے کی سیاست، پنچایت اور خاندانی غیرت کا سب سے بڑا مرکز تھی۔ اس حویلی کے اونچے مغلئی طرز کے دروازے، بڑی بڑی کھڑکیاں اور چوڑے دالان دور سے ہی دیکھنے والے پر ایک رعب اور دبدبہ طاری کر دیتے تھے۔ صبح کے ٹھیک 5 بج رہے تھے۔ حویلی کے اتنے بڑے صحن میں نوکر چاکر بالکل خاموشی سے دبے قدموں اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کوئی دالان کی صفائی کر رہا تھا تو کوئی باہر کی بڑی بیٹھک میں چودھری صاحب کے مہمانوں کے لیے قیمتی قالین سیدھے کر رہا تھا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سکون اور سخت نظم و ضبط تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اب حویلی کے سب سے بڑے سربراہ میر وفادار خان اور ان کے چھوٹے بھائی میر گل خان کے اٹھنے کا وقت ہو چکا ہے۔ پورے علاقے میں میر وفادار خان اور میر گل خان کی بھائی چارے کی جوڑی مشہور تھی۔ میر وفادار خان بڑے بھائی ہونے کے ناطے پنچایت، خاندانی فیصلے اور بیرونی معاملات کو سنبھالتے تھے، جبکہ چھوٹے بھائی میر گل خان خاندانی زمینوں، مال مویشیوں اور حویلی کے اندرونی معاملات کو دیکھتے تھے۔ میر گل خان کا مزاج اپنے بڑے بھائی کی نسبت تھوڑا نرم تھا، لیکن جب بات خاندانی غیرت، ناموس اور اصولوں کی آتی تو وہ بھی اپنے بڑے بھائی کے پیچھے ایک ناگزیر چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے۔ دونوں بھائیوں میں اتنا پیار تھا کہ آج تک پورے علاقے میں کسی دشمن کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ان کے درمیان کوئی معمولی سی دراڑ بھی ڈال سکے۔ میر گل خان اپنی اکلوتی بیٹی پھول بانو سے حد سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سکون تھی۔ اسی دوران حویلی کے بڑے اور شاہی کچن میں چولہے کی آگ جل چکی تھی۔ حویلی کی بڑی بیگم، جنہیں پورا خاندان اور خود میر وفادار خان بھی انتہائی احترام اور محبت سے دلہن بیگم کہہ کر پکارتے تھے، خود کھڑی ہو کر ناشتے کی تیاری دیکھ رہی تھیں۔ دلہن بیگم اس پورے گھر کی جان تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک روایتی رکھ رکھاؤ اور مخلصانہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ ہر نوکر کو پیار سے گائیڈ کر رہی تھیں کہ خان صاحب اور چھوٹے خان میر گل خان کی چائے میں الائچی کتنی ہونی چاہیے اور پراٹھے کیسے بننے ہیں۔ دلہن بیگم اور میر وفادار خان کے 2 بیٹے تھے جو اس حویلی کے وارث تھے۔ بڑے بیٹے کا نام حمزہ میر تھا، جو شہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اب اپنے والد کے ساتھ خاندانی کاروبار کا نظام سنبھال رہا تھا۔ حمزہ کا مزاج بہت ہی سلجھا ہوا، نرم اور شرافت سے بھرپور تھا، جس کی وجہ سے حویلی کے نوکر بھی اس سے کھل کر بات کر لیتے تھے۔ لیکن اس حویلی کے در و دیوار جس وجود کے قدموں کی آہٹ سے کانپتے تھے، وہ میر وفادار خان کا چھوٹا بیٹا تھا، یعنی علی میر خان۔ ابھی سورج کی پہلی دھندلی کرن حویلی کے دلان پر پڑی ہی تھی کہ اچانک لکڑی کی بڑی اور بھاری سیڑھیوں پر بوٹوں کی گونجدار آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی جاندار تھی کہ دلان میں کام کرتے ہوئے نوکروں کے ہاتھ یکدم رک گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی چادریں سیدھی کی، نظریں جھکائیں اور دیوار کے ساتھ بالکل سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ حویلی کا ماحول ایک
सेकंड में बिल्कुल संजीदा हो गया। सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। 6 फीट से भी ऊंचा कद, कसरती और चौड़ा सीना लिए अली मीर खान का गंदमी रंग, चकोर मजबूत जबड़ा और इसकी अकाबी गहरी काली आंखें ऐसी थीं कि कोई इनमें से 1 सेकंड से ज्यादा देख नहीं सकता था। इसके चेहरे पर एक मुस्तकिल संजीदगी और सख्ती रहती थी, जैसे उसे मुस्कुराना गुनाह लगता हो। वो अपने सफेद कड़क कुर्ते शलवार के ऊपर कंधे पर एक काली पश्मीना चादर लपेटे हुए था और इसके दाएं हाथ में हमेशा की तरह इसकी पसंदीदा राइफल थी। अली मीर का अक्खड़पन और इसका गुस्सा पूरे इलाके में मशहूर था। वो बात कम करता था और इसका फैसला आखिरी होता था। वह दलान से गुजरते हुए बाहर की तरफ जा रहा था कि इसकी भारी और रौबदार आवाज गूंजी। शेर खान, मेरी गाड़ी का टैंक फुल है, मुझे अभी 15 मिनट में दूर के देहात की जमीनों पर निकलना है। खान बाबा का हुक्म है। शेर खान, जो हवेली का सबसे पुराना मुलाजिम था, इसने घबराते हुए अपने हाथ जोड़े और सर झुकाकर कहा, जी छोटे खान साहब, गाड़ी बिल्कुल तैयार है, आपके लिए नाश्ता गाड़ी में रखवा दूं। अली मीर ने बगैर इसकी तरफ देखे अपनी राइफल को कंधे पर सीधा करते हुए कहा, जरूरत नहीं है। इसकी आवाज में ऐसा ठहराव और सख्ती थी कि शेर खान ने दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। दुनिया के लिए अली मीर खान एक जलाद, एक अक्खड़ और बेरहम इंसान था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस संगे मरमर जैसे सख्त पत्थर दिल के अंदर एक मासूम वजूद के लिए कितना गहरा, पकीज़ा और नाजुक सॉफ्ट कॉर्नर छुपा हुआ था। वह वजूद कोई और नहीं बल्कि इसके चचा मीर गुल खान की लाडली बेटी फूल बानो थी। अली मीर के दिल में फूल बानो के लिए बचपन से ही एक अलग ही जज्बा, एक तड़प और बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, हवेली के सख्त कल्चर, मर्दाना गरूर और अपनी फीलिंग्स को छुपाने की आदत ने इसके मिजाज में एक अजीब सी अकड़ और सख्ती पैदा कर दी थी। वो फूल बानो को दुनिया की हर नजर से बचाकर सिर्फ अपना बनाना चाहता था, लेकिन अपनी इस बेपनाह मोहब्बत को वो हमेशा गुस्से और अक्खड़पन के पर्दे के पीछे छुपा लेता था। वो इसके सामने आते ही मजीद सख्त बन जाता था ताकि कोई इसके दिल का हाल न जान सके। अली मीर अभी बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि हवेली के दूसरे हिस्से से एक धीमी और शहद जैसी मीठी खिलखिलाहट की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही अली मीर के कदम जैसे जमीन में धुनस गए। इसके चेहरे की सख्ती में एक सेकंड के लिए एक नरमी आई, लेकिन इसने फौरन खुद पर काबू पाया। वहां से चली आ रही थी फूल बानो जो मीर खानदान की इकलौती सबसे लाडली और नाजुक लड़की थी। वो बिल्कुल अपने नाम की तरह मासूम और पकीज़ा थी। इसने सफेद रंग का एक बिल्कुल सादा सूती सूट पहना हुआ था, जिस पर हल्की सी गुलाबी कढ़ाई थी। इसके लंबे काले और गीले बाल इसकी कमर पर खुले हुए थे, जिनसे पानी की छोटी छोटी बूंदें टपक कर इसके सूट को भिगो रही थी। फूल बानो शहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके हाल ही में हवेली वापस आई थी, इसलिए इसके अंदाज में एक जदीद सुलझाव भी था और खानदानी हया भी। वो दादी अम्मा के कमरे की तरफ जा रही थी और अपने हाथ में तस्बीह पकड़े कुछ गुनगुना रही थी। फूल बानो ने जैसे ही अंधेरी और लंबी राहदारी में कदम रखा, इसके सामने वही 6 फीट का चौड़ा वजूद आकर खड़ा हो गया। फूल बानो ने चौंक कर ऊपर देखा, सामने अली मीर खान खड़ा था। अली मीर का रुख बिल्कुल इसकी तरफ था और इसकी वो अकाबी गहरी आंखें सीधा फूल बानो के मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी। अली मीर की नजरों में इस वक्त एक अजीब सी तपश, एक गहरा हक और एक मफरूर आशिक की तड़प थी, जो फूल बानो को अंदर तक सहमने पर मजबूर कर रही थी। फूल बानो के हंसते हुए होंठ यकदम जम गए। इसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा इसकी सांस रुक जाएगी।
वो बचपन से ही अली मीर के इस अक्खड़ मिजाज और इसके गुस्से से शदीद डरती थी। फूल बानो ने फौरन अपनी नजरें झुकाईं, अपने दुपट्टे को सर पर मजीद आगे किया और घबराहट में अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में भींचने लगी। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था कि कहीं अली मीर किसी बात पर गुस्सा न कर दे। वो वहां से जल्दी से गुजरने लगी, लेकिन अली मीर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जब फूल बानो इसके बिल्कुल करीब से गुजरी तो अली मीर की काली चादर का एक कोना हवा के झोंके से उड़कर फूल बानो के गीले बालों और दुपट्टे से टकराया। फूल बानो ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और तेजी से कदम बढ़ाकर दादी अम्मा के कमरे के अंदर चली गई। अली मीर वहीं खड़ा रहा। इसने अपनी मुट्ठी को इतने जोर से भींचा कि इसके हाथ की रगें तन गईं। इसने एक लंबा और गहरा सांस लिया, जिसमें अभी अभी फूल बानों के गीले बालों से आने वाली मोतिये की भीनी भीनी खुशबू रची हुई थी। वो बिना कुछ कहे अपने बूटों की भारी आवाज गूंजता हुआ हवेली के बड़े गेट से बाहर निकल गया। हवेली के बड़े और शाही डाइनिंग हॉल में अब पूरा खानदान जमा हो चुका था। मेज के बिल्कुल सामने सदर की बड़ी कुर्सी पर मीर वफादार खान बैठे थे और इनके बिल्कुल बराबर में इनके दस्ते रास्त छोटे भाई मीर गुल खान मौजूद थे। हमजा मीर और अली मीर भी अपने अपने वक्त पर मेज पर आकर बैठ चुके थे। फूल बानो भी दादी अम्मा का हाथ थामे वहां आई और सबको प्यार से सलाम किया। मीर गुल खान ने जैसे ही अपनी लाडली बेटी को देखा, इनके चेहरे पर एक बाप की बेपनाह मोहब्बत चमक उठी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आओ मेरी जान, मेरी अपनी दादी अम्मा के पास बैठो। आज मेरी बेटी ने दादी अम्मा को जगाया है या खुद दादी अम्मा ने तुम्हें उठाया है? फूल बानो ने शर्मा कर अपने वालिद को देखा और धीमी आवाज में बोली, बाबा जानी, मैं तो कब की जाग चुकी थी, बस दादी अम्मा के लिए तस्बीह ढूंढ रही थी। मीर वफादार खान ने भी अपनी भतीजी को देखकर सर पर हाथ रखा। पूरे खानदान का ये प्यार देखकर दुल्हन बेगम का दिल भी खुश हो रहा था। नाश्ते के दौरान जब नौकर चाय पेश कर रहे थे, मीर वफादार खान ने चाय का एक घूंट लिया, अपनी घनी मूंछों को ताव दिया और अपने छोटे भाई मीर गुल खान की तरफ देखकर रोबदार लेकिन इंतहाई मुखलस आवाज में कहा, गुल खान, अब देखो हमजा भी शहर से कारोबार संभाल कर आ चुका है और हमारी लाडली फूल बानो की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि जो निस्बत हमने इन दोनों की बचपन में तय की थी, अब उससे रिश्ते में बदलने का वक्त आ गया है। बड़े भाई होने के नाते मेरा हुक्म भी है और एक बाप होने के नाते मेरी ख्वाहिश भी है कि हमजा मीर और फूल बानो का निकाह अब जल्द से जल्द होना चाहिए। मीर गुल खान ने अपने बड़े भाई की बात सुनकर फौरन अपने हाथ मेज पर रखे। इनके चेहरे पर एक फहर और सुकून का एहसास था। उन्होंने सर झुकाकर कहा, लाला साईं, आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मेरी फूल बानो आपके साए में इसी हवेली में रहेगी। हमजा मेरा बेटा है और मैं आपके इस फैसले पर दिलो जान से राजी हूँ। ये सुनते ही फूल बानो का पूरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। इसने खामोशी से सर झुका लिया। वो हमजा की बहुत इज्जत करती थी क्योंकि हमजा का मिजाज नरम और अच्छा था। लेकिन दूसरी तरफ बैठे अली मीर खान का चेहरा अपने चचा मीर गुल खान और बाप का ये फैसला सुनते ही यकदम गुस्से और हसद से सुर्ख हो गया। इसकी मुट्ठियां भींच गईं और इसने अपने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास इतने जोर से टेबल पर रखा कि पूरे हॉल में एक गूंज पैदा हुई। वो बिना कुछ कहे कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हुआ और तेज कदमों से बाहर निकल गया। दुल्हन बेगम ने परेशानी से उसे देखा, जबकि मीर गुल खान थोड़ा चौंक गए कि अली मीर को अचानक क्या हुआ। लेकिन मीर वफादार खान ने बात को संभालते हुए कहा, छोड़ो इसे, इसका मिजाज बचपन से ही ऐसा अखड़ है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही खूबसूरत खानदानी रिश्ता आगे जाकर एक बहुत बड़े इम्तिहान में बदलने वाला है। निस्बत तय होने के चंद ही दिन बाद हवेली में एक बहुत बड़ा
कारोबारी और खानदानी मसला खड़ा हो गया। मीर वफादार खान के खानदानी कल्चर और वडेरे टाइप बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर के एक बहुत बड़े बाअसर और अमीर बिजनेसमैन सरदार आजम खान के साथ कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे। ये मामला खानदानी इज्जत और पंचायत का था, इसलिए मीर वफादार खान ने अपने बड़े और सुलझे हुए बेटे हमजा मीर को इस मामले को हल करने के लिए शहर भेजा। शहर पहुंचकर हमजा मीर का क़याम कारोबारी मीटिंग्स की वजह से तवील होता चला गया। एक दिन जब हमजा मीर एक अहम डील के सिलसिले में सरदार आजम खान के बड़े बंगले पर पहुंचा तो गाड़ी से उतरते ही अचानक एक तेज रफ्तार लड़की तवाज़न बिगड़ने की वजह से इससे जोर से आकर टकराई। लड़की के हाथ में मौजूद अहम फाइलें और कागजात हवा में उड़ते हुए जमीन पर बिखर गए। ओ माय गॉड, देखकर नहीं चल सकते क्या? वो लड़की गुस्से से तिलमिलाकर चलाई। हमजा मीर ने चौंक कर देखा, सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो सरदार आजम खान की इकलौती और लाडली बेटी सहर खान थी। सहर खान शहर की पढ़ी लिखी, इंतहाई मॉडर्न, नडर और तेज तरार लड़की थी जो अपने बाप का पूरा बिजनेस संभालती थी। पहली ही मुलाकात में सहर खान के इस तीखे तेवर और इसकी बेपनाह खूबसूरती ने हमजा मीर के दिल पर एक गहरा असर छोड़ा। हमजा मीर जो अब तक सिर्फ खानदानी असूलों के पीछे चल रहा था, सहर को देखकर जैसे सब कुछ भूल गया। चूंकि हमजा मीर को बिजनेस और पंचायत के सिलसिले में वहां काफी अरसा स्टे करना पड़ गया था, इसलिए इसकी और सहर खान की मुलाकातें रोज का मामूल बन गईं। सहर खान पहले तो हमजा को एक रवायती वडेरा समझती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमजा मीर की शराफत, इसके खानदानी रख रखाव और इसकी दिलकश पर्सनालिटी की दीवानी हो गई। दोनों का साथ काम करना, हंसना और वक्त गुजारना हमजा के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास बन गया। हमजा मीर के दिल से फूल बानो का वो कजन वाला ख्याल अब बिल्कुल मिट चुका था। उसे समझ आ गया था कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है और वो अब ज़हनी तौर पर पूरी तरह सहर खान का हो चुका था। खुशकिस्मती से इस दौरान दोनों खानदानों के कारोबारी और खानदानी ताल्लुकात भी बहुत अच्छे और मजबूत हो गए। जब हमजा मीर अपना सारा काम मुकम्मल करके सवात की हवेली वापस आया तो इसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लेगा। शाम के वक्त जब मीर वफादार खान और माँ दुल्हन बेगम दलान में बैठे थे, हमजा ने हिम्मत की और इनके सामने खड़ा हो गया। बाबा साईं, मैं फूल बानो से शादी नहीं कर सकता। मैं शहर में सरदार आजम खान की बेटी सहर खान को पसंद करता हूँ। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं इसी को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। हमजा ने साफ अल्फाज में कह दिया। ये सुनते ही जैसे हवेली के दरो दीवार पर बिजली गिर गई। मीर वफादार खान गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। इनका चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया। क्या कह रहे हो हमजा, तुम अपनी खानदानी रीत तोड़ोगे? मीर वफादार खान की जुबान की कोई कीमत नहीं है। फूल बानो के वालिद मीर गुल खान के लिए ये बात एक इंतहाई गहरी चोट की तरह थी। इनकी गैरत पर आंच आई थी कि इनकी लाडली बेटी को ठुकराया गया था। हवेली का सुकून यकदम बर्बाद हो गया। दोनों भाइयों के दरमियान शदीद मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई और हवेली में एक तूफान बर्पा हो गया। फूल बानो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। इसका दिल टूट चुका था, लेकिन वो बड़ों की इज्जत की वजह से खामोश थी। खानदान को बिखरता और अपनी जुबान को टूटता देखकर मीर वफादार खान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैसला किया। उन्होंने पूरे खानदान को दलान में जमा किया और अपनी गर्जदार आवाज में ऐलान किया, अगर हमजा मीर अपनी जुबान से मुकर गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मीर वफादार की दी हुई जुबान टूट जाएगी। फूल बानो इसी हवेली की बड़ी बहू बनेगी, लेकिन हमजा की नहीं, मेरे छोटे बेटे अली मीर खान की बीवी बनकर। ये सुनते ही फूल बानो के पैरों
तले से जमीन निकल गई। वो अली मीर से इसके गुस्से और अकड़बंद से बचपन से डरती थी। अब वो इसकी बीवी बनने जा रही थी, लेकिन अली मीर खान वहां खामोश खड़ा रहा। इसके चेहरे पर एक संगी हमार था और इसकी आंखों में एक गहरा सुकून था, जैसे उसे इसकी कायनात मिल गई हो। मीर वफादार खान ने खानदानी ताल्लुकात बचाने के लिए हमजा और सहर खान की शादी की तारीख भी पहले तय कर दी। शादी का दिन आ गया। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हमजा मीर और सहर खान की शादी की रस्में धूमधाम से हो रही थी। हर तरफ हंसी मजाक था, लेकिन इस पूरे फंक्शन में सबसे खूबसूरत और पोशीदा ड्रामा अली मीर और फूल बानो के दरमियान चल रहा था। फूल बानो ने हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। बालों में मोतिये का गजरा महक रहा था। वो शर्म और खौफ के मारे मेहमानों से दूर किचन की तरफ जा रही थी कि अंधेरी राहदारी में अचानक वो किसी के मजबूत और चौड़े वजूद से टकरा गई। मजबूत हाथों ने फौरन इसकी नाजुक कमर को अपने हसार में ले लिया। फूल बानो ने डर कर आंखें खोल ली तो सामने अली मीर खान खड़ा था। इसकी गहरी और अकाबी आंखें इस वक्त गुस्से में नहीं, बल्कि एक अजीब सी तपश और दीवानगी से दहक रही थीं। अली मीर ने इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त को मजीद मजबूत किया और उसे अपने सीने से बिल्कुल लगा लिया। फूल बानो की सांसें अटक गईं। इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि अली मीर को अपने सीने पर महसूस हो रहा था। अली मीर, छोड़ें, कोई देख लेगा। फूल बानो ने शर्म से पानी पानी होते हुए अपनी नजरें झुकाकर इसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। अपनी होने वाली बीवी को ही थामा है मैंने। अली मीर की भारी आवाज में एक गहरा हुमार था। इसने झुककर फूल बानो के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ी। आज इस हवेली में तुम सबसे ज्यादा क़यामत ढा रही हो फूल बानो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, अब तुम बहुत जल्द जान जाओगी। फूल बानो का पूरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। इसने कभी अली मीर का ये रूप नहीं देखा था। वो अक्खड़ लड़का आज इसके हुस्न के आगे पिघल रहा था। वो अपने आप को छुड़ाकर भाग गई, लेकिन अली मीर की उंगलियों की तपश अब भी इसके जिस्म पर महसूस हो रही थी और अली मीर के दिल में फूल बानो के लिए एहसासात और जज्बात का एक ऐसा तूफान जाग चुका था जो अब रुकने वाला नहीं था। अब बारी इन दोनों की अपनी शादी की थी। प्यारे व्यूवर्स, हमजा मीर और सहर खान की शादी तो हैरो आफियत से हो गई, लेकिन अब बारी थी हमारी मासूम फूल बानो और अख्तर खान अली मीर के निकाह की। क्या होगा जब शादी के बाद ये अख्तर शोहर अपने गहरे, बोल्ड और दीवाने रोमांस से फूल बानो के दिल का सारा डर खत्म कर देगा? क्या फूल बानो इसकी इस तड़पती हुई मोहब्बत को संभाल पाएगी? जो पार्ट 2 जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला और आखिरी फाइनल पार्ट।